Hello students, today I will discuss the parallel combination of capacitors. Okay. Now students, take a careful look about the parallel combination of capacitors. First of all, I will teach you how to identify the parallel combination of capacitors. Got it, students? Be very clear with it. Now, in this figure, let us suppose I am talking about the three capacitors having the capacitances as C1, C2 and C3. Okay? Clear? Now take a look. Now, the left plate of every capacitor, I am connecting with the point A. The left plate of every capacitor is connected with the point A. Okay, so this point A is common. Okay, to the left plates of the three capacitors. Okay, in the same way, the right hand side plates of all the three capacitors now I am connecting the right side plates of the three capacitors with the point B. Okay. Now take a look. When we are talking about the first capacitor, whose capacitance is C1, we can say that it is connected between the points A and B. Okay. Same way, if we are talking about only the second capacitor, we can say that the second capacitor is again connected between the points A and B. Similarly, the last capacitor is also connected between the points A and B. Okay. Now friends, such a combination in which the set of different capacitors are connected between any two common points. They are connected between any two common points. Clear? Each capacitor is connected between the same 2 points. Okay. In such a case, we are going to say that the capacitors are connected in parallel with each other between those two given points. Got it, friends? Okay. So since it will be the identification technique, I am making a statement. Note it down. Okay. हैश डाल के लिखना identification for parallel combination of the capacitors. Underline कर लो इसको, इसके अगेंस्ट लिखो. The capacitors are said to be connected in parallel with each other between the two given points, say A and B, if
each capacitor is independently connected across the two given points, as in figure 1. ये वाला फिगर कॉपी करना है और इसको फिगर 1 बोलना है, इसको फिगर 1 बोलना है। कॉपी करें। कॉपी करिए। डन। अब बेटा एक काम करो, दोबारा से हैश डालो, हैश डाल के लिखो चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो लिख करके अंडरलाइन करो। चार्ज फ्लो लिखिए, अंडरलाइन करिए। ये वाला फिगर कॉपी करें। अब ध्यान से देखिए बेटा, बैटरी के पॉजिटिव पोल से प्लस क्यू चार्ज निकालना है। वायर से प्लस क्यू चार्ज फ्लो करेगा, तो पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, इसको बोलेंगे अराइविंग चार्ज। क्लियर? अब क्योंकि चार्ज फ्लो के लिए सेंस एग्जैक्टली उतने पाथ्स अवेलेबल हैं जितने कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ध्यान से देखिए, हमने बोला था कि बेटा these three capacitors they are connected in parallel with each other between the points A and B. क्लियरली अब आपको दिखाई दे रहा है। चार्ज फ्लो के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट पाथ्स हैं। लेट अस सपोज से ये जो अराइविंग चार्ज है, ये अराइविंग चार्ज 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज द चार्ज से प्लस Q1. It will flow from the point A to the point B via the capacitor C1. ओके, अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज होगा वो वायर से फ्लो करेगा, तो यहां से प्लस Q1 चार्ज आगे निकल जाएगा। समझ आ गई बात? देन वी आर गोइंग टू से कि द चार्ज held by the capacitor whose capacitance is C1, it is say plus Q1. Got it? Now same, let us suppose say that plus Q2 is the charge which flows from the point A to the point B via the capacitor of capacitance C2. Got it? Now again, the positive charge will get uniformly distributed over the left plate, and the negative charge in equal amounts will get induced on the right plate. And the induced positive charge, it will flow towards the point B. Got it? Now, look about this third path. Say plus Q3 plus Q3 is the charge flowing from the point A to the point B via the capacitor whose capacitance is C3. Okay? In the same way, the positive charge is distributed, the negative charge in equal amounts is induced, and the induced positive charge, it will flow
through the wire towards the point B. Got it? Now take a look at this point A. बेटा बैटरी के पॉजिटिव से प्लस की चार्ज निकाला था आपने, फ्लो करा दिया. पॉइंट ए पर जो चार्ज आ रहा है दैट इज प्लस क्यू, एंड दिस प्लस क्यू इज द अराइविंग चार्ज. फिर ये चार्ज प्लस क्यू डिवाइड हुआ 3 डिफरेंट पार्ट्स में. गॉट इट? से Q1, Q2 एंड Q3 आगे फ्लो कर गया. फिर अब पॉइंट बी को देखिए. पॉइंट बी पर Q1 चार्ज, Q2 चार्ज एंड Q3 चार्ज. They are the arriving charges through different paths. अब क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, सर्किट कंप्लीट होगा, तो बेटा ये सारा का सारा चार्ज एडअप हो जाएगा. एडअप होने के बाद फिर ये चार्ज प्लस क्यू वायर से फ्लो करेगा और बैटरी के नेगेटिव पोल में जाएगा. बैटरी का सर्किट यहां पे कंप्लीट हो गया. बात समझ आ गई? क्लियर? चार्ज फ्लो समझ आ गया? कॉपी कर ले फिगर को. डन. एक स्टेटमेंट लिखें. स्टेटमेंट लिखिए. When the capacitors are connected in parallel with each other, between the two given points, then for the charge flow from one point to the other, there exists more than one path. ओके, समझ आ गई ये बात? अब एक और बात ध्यान से देखिए. बेटा देखिए, बैटरी लगाई है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. तो बैटरी ने क्या किया? बैटरी इज जस्ट द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है. पल्ले पड़ गई बात. अब बेटा सारे के सारे कैपेसिटर्स जो फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं, हर कैपेसिटर इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. अब क्योंकि स्टूडेंट्स पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी, तो इसका मतलब जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. पल्ले पड़ गई बात? दोबारा एच डालिए. दोबारा एच डाल के लिखिए. दोबारा एच डाल के लिखिए. स्केल है When the capacitors are connected in parallel with each other, between the two given points, then the potential difference across each capacitor is same. And the ratio of the charge stored by the capacitors connected in parallel with each other is always in the ratio of their capacitances. ओके, ये एंड के बाद जितना लिखवाया है बोर्ड पे समझा रहा हूं, इलस्ट्रेशन के साथ समझा रहा हूं, कॉपी कर लेना. अब ध्यान से देखिए. Let us suppose it is the capacitor whose capacitance is C1. It is the capacitor whose capacitance is C2. Let us say it is the point A and it is say the point B.
अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बैटरी बोला, V इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के पॉजिटिव पोल से प्लस क्यू चार्ज निकलेगा, आगे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस Q1 यहां से जाएगा, प्लस Q2 यहां से जाएगा। समझ आ गई बात? सर्किट कंप्लीट करने के लिए प्लस Q आगे से आ जाए। पल्ले पड़ गई ये बात? ओके। अब यहां से देखें, फॉर द कैपेसिटेंस C1 आई एम यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज and the potential difference. We can say this Q1 is written as a C1 into V. Clear? And for the capacitance say C2, this Q2 is written as a C2 into V. बात समझ आ गई? दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। दोनों को डिवाइड करते हैं तो मिलता है Q1 by Q2 is equals to C1 by C2. V से V कैंसिल होते हैं। तो बेटा जो बात आपको बताई है कि जो चार्जेस का रेशो है वही कैपेसिटेंस का रेशो है। पल्ले पड़िए बात। ओके, कॉपी कर लें इसको, कॉपी करिए। डन। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स हेडिंग डालिए और ये याद रखें ये कैलकुलेटिंग स्किल है, काम आएगी, शॉर्टकट पड़ता है ये, ठीक है। हेडिंग डालिए, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, expression for equivalent capacitance for the parallel combination of capacitors. ये ला फिगर कॉपी करें। यह फिगर कॉपी करिए। डन। नेक्स्ट लाइन में लिखें, कंसिडर द कैपेसिटेंसेस C1, C2 and C3 connected in parallel with each other between the points A and B. Full stop. Let V, capital V, be the applied potential difference across the parallel combination of capacitors and plus Q be the charge drawn from the battery. Now, next line में लिखना है, next line में लिखना है, using the principle of conservation of charges, using the principle of conservation of charges at the point A. Say this Q is written as say Q1 plus say Q2
प्लस से Q3। ये स्टेटमेंट कॉपी करें। डन डन। नेक्स्ट लाइन में लिखें लेट ऐसे लिखें CP, let CP be the equivalent capacitance of the parallel combination of capacitors between the points A and B. नेक्स्ट लाइन में लिखें using the definition of capacitance, using the definition of capacitance। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए बेटा, बैटरी को देखिए, बैटरी से जो चार्ज निकला है दैट इज से प्लस क्यू, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से V, ठीक है। सो वी कैन से Q इज रिटन एज CP मल्टीप्लाइड विद V। याद रखें इसको, टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। एंड ऑल्सो बेटा Q1 इट कैन बी रिटन एज, जब आप कैपेसिटर C1 की बात कर रहे हैं तो C1 पर जो चार्ज है दैट इज से प्लस Q1, द कैपेसिटेंस इज C1 and the applied potential difference is again V। Q2 the charge on the capacitor whose capacitance is C2, so C2 multiplied with V, then Q3 C3 multiplied with V। got it? कॉपी करें। डन, ओके। अब बेटा ये सारी वैल्यूज यहां पे डालनी है, ये सारी वैल्यूज यहां पर डालनी है, ठीक है। देखिए ये सारी वैल्यूज यहां पे डालते हैं। ये सारी वैल्यूज यहां पे डालने पर आपको मिलता है CP मल्टीप्लाइड विद V इज रिटन एज C1 मल्टीप्लाइड विद V प्लस C2 मल्टीप्लाइड विद V प्लस C3 मल्टीप्लाइड विद V। समझ आ गई बात? नाउ CP मल्टीप्लाइड विद V, V is made common, it is C1 plus C2 plus C3, thus V is cancelled out, so the CP is written as C1 plus C2 plus C3। समझ आ गई ये बात? तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि सिंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is always equal to the algebraic sum of the individual capacitances which are present in the combination। okay, इसको लिख लें आप। नेक्स्ट लाइन में लिखें from the above we conclude that the equivalent capacitance in parallel combination of capacitors is always equal to the algebraic sum of the individual capacitances present in the combination। दोबारा एच डालिए, दोबारा एच डाल के एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, उसे भी लिखिए। सिंस जब भी कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी होती है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स तो कैपेसिटर्स हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। ओके, हैश डाल के लिखिए। टू इंक्रीज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन the two given points the capacitors
are to be connected in parallel with each other. अब एक और बात, अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि बेटा जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट ऑफ दैट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस whose value is maximum. Okay, हैश डाल के लिखे इसको। in parallel combination the equivalent capacitance is always greater than the largest value of the capacitance present in the combination. बात समझ आ गई? ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम कि बेटा सीरीज पैरेलल जब सॉल्व करना है बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स, तो एक कॉमन अप्रोच दे रहा हूं। ये जो कॉमन अप्रोच है ये हर जगह फिट हो, तो इसमें हम क्या करेंगे कि स्टेप वाइज सर्किट को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को केयरफुली करना और आपके पास जो आपकी बुक्स हैं उनसे आज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट का प्रैक्टिस करना। ठीक है, बताया जा चुका है कि कैपेसिटेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंसेस आ गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेजिस्टेंसेस आएगा, वो भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहां पे प्रैक्टिस नहीं किया तो ये कैपेसिटर तो उड़ेगा, साथ में रेजिस्टर्स को लेके उड़ेगा। ठीक है, बाय द मीन टाइम आप ऐसा करें, अपनी स्किल्स निकाल लें सीरीज कॉम्बिनेशन की और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन स्किल्स निकाल लें, पहले 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक बार निकाल के उनको गो थ्रू करें। मैं एक सर्किट बिल्डअप कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। कैपेसिटर्स का सिंबल बेटा ये होता है, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं जिनका लेंथ इक्वल होता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपेसिटर्स की। आपके स्कूल्स में, सीबीएसईज में यूजुअली ये सिंबल्स आएंगे। ये वाले सिंबल्स जो मैंने मार्क किए हैं ये भी आ सकते हैं। सिंस अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया, इसके अंदर हमने एक प्लेट को कवर किया और दूसरी प्लेट को स्ट्रेट रखा है, तो दोनों ही सिंबल कैपेसिटर्स के होते हैं। ठीक है, जल्दी से फिगर कॉपी करें। हमें यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी।
ठीक है, और ये डाटा कॉपी कर लें। C1 is equals to C2 is equals to C3 is equals to say C4 equals to C5 equals to C6 is equals to say C7 and is equals to say C। मतलब सारी कैपेसिटेंसेस C के इक्वल कॉपी कर लें, क्योंकि इसके बाद मुझे डाटा मिटाना पड़ेगा। डन? ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन कराया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालना होता है, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है वाया द सर्किट, और पाथ ऐसा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स काउंट हो जाए। समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट्स ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप मूव करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ए और अल्टीमेटली आपने आना है पॉइंट बी पर। यह बात समझ आ गई? क्लियर? पाथ ऐसा लेना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स काउंट हो जाए, मतलब सारे अल्टीमेटली काउंट करने हैं। ठीक है, तो याद रखिए, ध्यान से देखिए, सर्किट को देखिए। सर्किट में हमेशा दो चीजें होंगी। यहां से देखिए, सर्किट का लेफ्ट दिखाई दे रहा है, सर्किट का राइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ सर्किट्स में आप डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टली, सर्किट का टॉप दिखाई देगा, सर्किट का बॉटम दिखाई देगा। समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए, जब बेटा आप पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करते हैं, आगे जाते हैं, तो आप आते हैं सबसे पहले इस वाले जंक्शन पे। इस जंक्शन को मैंने बोला पॉइंट डी। समझ आई बात? ओके, अब जब आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और पॉइंट डी तक आ जाते हैं, अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंट पाथ्स, 3 डिफरेंट पाथ्स, मतलब ब्रांचिंग एट द पॉइंट डी। जब ब्रांच आ जाए तो रुक जाए वहां पे। जब ब्रांच आ जाए तो रुक जाए वहां पे। ब्रांच से पहले तक आपने जितने भी कैपेसिटर्स क्रॉस किए हैं, अभी आप उन कैपेसिटर्स को आने वाले कैपेसिटर्स के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो भूल जाए। तो क्या बोलना है? ए से मूव किया, डी तक आ गए, डी पे आ गई ब्रांचिंग, तो अभी के लिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? मतलब बेटा C1 का सीरीज या फिर पैरेलल किसी और कैपेसिटर्स के साथ हम बात नहीं कर सकते अभी। समझ आ गई बात? पहली बात समझ आई? जब आप मूव करें, जहां ब्रांच आ जाए रुक जाएं, उससे पहले जितने भी कैपेसिटर्स हैं थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि जिन कैपेसिटर्स को आप क्रॉस कर चुके हैं अभी उनको आप बाकी कैपेसिटर्स के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। पहली बात समझ आ गई? चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले पॉइंट को मैंने E मार्क कर दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने F मार्क कर दिया, और इस वाले पॉइंट को मैंने G मार्क कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपने? अब आप पॉइंट D से स्टार्ट करेंगे मूव करना। अब पॉइंट D से मूव करना स्टार्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट पाथ दिखाई दे रहे हैं। आप D से E जा सकते थे, E से F आ सकते थे। यस और नो? क्लियर? आप डी से इस वाले पाथ के लॉन्ग भी मूव कर सकते थे, डी से सीधा एफ आ सकते थे, आप डी से सीधा जी जा सकते थे। अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि मूव किधर करना है। एक टाइम पे सिर्फ एक ही पाथ के लॉन्ग मूव किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक है। जब ये बेसिक आ जाए तो उसके बाद छलांगे मारो। ओके, अब ध्यान से देखिए। अब स्टूडेंट्स, हमें पाथ वो वाला चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स काउंट हो जाए। अब ध्यान से देखिए, मैं डी से अगर एफ चला जाता हूं तो मुझे एफ पॉइंट पे फिर से ब्रांचिंग दिख जाएगी, लेकिन कैपेसिटर तो एक ही क्रॉस हुआ, तो अभी के लिए इस वाले पाथ के लॉन्ग मूव नहीं करेंगे। अगर डी से जी जाते हैं तो जी पॉइंट पे फिर ब्रांचिंग दिख जाएगी, और कैपेसिटर भी सिर्फ एक ही क्रॉस हुआ, तो हम ये वाला पाथ भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? हम ये वाला पाथ लेते हैं। पहले डी से ई जाते हैं, ई से एफ आते हैं। ओके, अब जंक्शन डी को ध्यान से देखिए।
डी पर 4 कंडक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। कौन से? एक ये वाला कंडक्टर जो C1 को कनेक्ट कर रहा है, एक ये वाला जो C2 को कनेक्ट कर रहा है, एक ये वाला जो C5 को कनेक्ट कर रहा है, एक ये वाला जो C6 को कनेक्ट कर रहा है। तो बेटा जंक्शन डी पे जहां ब्रांचिंग है 4 कंडक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अब डी से अगर हम ई जाते हैं तो क्या ई पे ब्रांचिंग है? ब्रांचिंग तब मानी जाती है जब 2 से ज्यादा कंडक्टर्स हो। 2 से ज्यादा कंडक्टर्स है तो ब्रांचिंग है, अदरवाइज ब्रांचिंग नहीं है। अब देखिए, डी से ई जाते हैं, ठीक है, तो ई पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये सिर्फ वायर मुड़ी हुई है और हमने यहां पे एक जंक्शन का खाली नाम रख दिया है। ओके, ई में और डी में क्या डिफरेंस है? ई पर मुझे सिर्फ 2 कंडक्टर्स कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जबकि पॉइंट डी के ऊपर हमें 4 कंडक्टर्स कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे डी पे बोला था ब्रांचिंग है, ई पॉइंट पर ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। और जब सर्किट में मूव करते हैं तो ब्रांच टू ब्रांच मूव किया जाता है, मतलब उस वाले जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाना है जहां पे दोबारा ब्रांचिंग आ जाए और रुक जाना है। तो डी से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ई पे जाएंगे, ई से एफ पे आ जाएंगे, ब्रांचिंग आ गई, रुक जाएं। तो बेटा जब हम इस वाले पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, आपने ये वाले 2 कैपेसिटर्स को क्रॉस किया, क्लियर। अब जब सीरीज समझाई थी, ओके, उसके अंदर सेकंड फिगर था, ध्यान से देख लें उसको। अब जब आप डी से एफ आ रहे हैं, सिर्फ आप इन 2 कैपेसिटर्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो बीच में कोई ब्रांचिंग आई? नहीं आई। जब ब्रांचिंग नहीं होती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। समझ आ गई बात? पल्ले पड़ गई बात? ये इतना सिंपल है, बहुत सिंपल, एक बार ही दिमाग में बैठा लो, हमेशा काम आएगा। तो साइड पे जितने पार्ट को आप सॉल्व कर रहे हैं पहले उसको मेंशन कर लें। तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज। अब बेटा जो सीरीज में है उनको सॉल्व कर ले, उनका इक्विवेलेंट बोल दें, इक्वेशन लिखेंगे आप, इक्वेशन से पता लग जाएगा आप किसको सॉल्व कर रहे हैं। 1/c' लिख रहा हूं, इज रिटन एज से 1/c2 प्लस 1/c3, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करते हैं। समझ आ गई ये बात? साफ साफ कॉपी करते जाएं, क्योंकि ये फिगर मिटाना पड़ेगा मुझे, हम यहां पे रिड्यूस करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो 1/c' is written as 1/c plus again 1/c. So 1/c' is written as say 2/c. So c' is written as say c/2. तो c' कितना आ गया? c/2. Got it? अब बेटा जिन कैपेसिटर्स को सॉल्व कर दिया है, अब अगले स्टेप की बात कर रहा हूं। जिन कैपेसिटर्स को सॉल्व कर दिया है, एक नया फिगर बनाएं और पेरेंट फिगर में से, जो पेरेंट फिगर था उसमें से उन कैपेसिटर्स को हटा दे जिनको सॉल्व कर लिया। जैसे मैं हटा रहा हूं, देखिए मैंने C2 और C3 का कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दिया। तो एक काम करते हैं, तो स्वयं हटा लेते हैं, उसको हटा लिया। हमने C2 और C3 का कॉम्बिनेशन सॉल्व किया था, हटा लिया पेरेंट फिगर में से। आप ये फिगर दोबारा बनाएंगे, पहले वाले फिगर को 1 लिख लेना, इस वाले फिगर को 2 लिखना, ठीक है, और इसको स्टेप 1 लिखना। हर एक स्टेप में एक सर्किट का फिगर होगा। पल्ले पड़ गई बात? चलिए अब ध्यान से सुनिए, जिन कैपेसिटर को सॉल्व कर लिया उसको हटा लिया फिगर से, उनका जो इक्विवेलेंट था उसको कनेक्ट करें उन 2 पॉइंट्स के बीच में जहां पर आपने इक्विवेलेंट सॉल्व किया था। जैसे C2 और C3 सीरीज में कनेक्टेड थे बिटवीन द पॉइंट्स D एंड F, उनको हटा दिया, तो उनकी जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर बनाए, उसकी कैपेसिटेंस को लिखें C' और उसको कनेक्ट करा बिटवीन द पॉइंट्स D एंड F। ये देखिए कैपेसिटेंस हो गया C', ऐसे कनेक्शन हो। ओके, पल्ले पड़ गई बात? अब दोबारा फिर से वही काम करें स्टार्टिंग से, जैसे पहले किया था। पॉइंट ए से मूव करें, डी पे पहुंच गए,
अब डी पे फिर ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, ए से स्टार्ट किया, डी पे पहुंच गए, फिर से ब्रांचिंग दिखाई दे रही है। तो मतलब अभी C1 को आगे वाले सर्किट के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता, भूल जाए C1 को, भूल गए C1 को। अब आप ब्रांच टू ब्रांच दोबारा मूव करिए। अब आपने डी से पहले एफ पे आना है। अब डी से जब आप एफ पे आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, डी से जी जाया जा सकता था। डी से अगर हम जी जाते तो हमें मिलता कुछ नहीं, क्योंकि यहां पे भी ब्रांचिंग आ गई, तो इसको हम आगे वाले पार्ट के साथ सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो सर्किट को बेटा एक ऐसे एंड से खोलना स्टार्ट करते हैं जहां से हम स्टेप वाइज करते चले जाए। अब ध्यान से देखिए, डी से आप एफ आ रहे हैं वाया दिस पाथ, तो आपको सिर्फ एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, जिसे कैपेसिटर सी डैश है। बेटा इस वाले पाथ के अलावा आते हैं इधर, तो आपने C5 को क्रॉस किया, पहुंच गए एफ पे। अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया। पैरेलल कॉम्बिनेशन ने क्या किया था, केसेस कैपेसिटर्स इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड होंगे बिटवीन द टू कॉमन पॉइंट्स। अब ध्यान से देखिए, C डैश कहां पे कनेक्टेड है, D और F के बीच में। C5 कहां पे कनेक्टेड है, D और F के बीच में। तो बेटा ये दोनों पैरेलल में हो गए, बात समझ आ गई। अब क्या C6 D और F के बीच में कनेक्टेड है? C6 की एक प्लेट तो D के साथ है, लेकिन दूसरी प्लेट G के साथ है। समझ आ गई बात? तो इसलिए ऐसा मत करें कि C डैश, C5 और ये C6 ये तीनों पैरेलल, ऐसा ना करें, ये नहीं है। पल्ले पड़ी बात। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स होंगे वो सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होंगे, और वो दोनों पॉइंट्स कॉमन होंगे। तो क्या बोलेंगे, C डैश और C5 पैरेलल में है बिटवीन D एंड F। तो ये स्टेप सेकंड और ये फिगर सेकंड। ये हो गया जी आपका फिगर सेकंड। अब बात करेंगे स्टेप सेकंड की। ओके, किसको सॉल्व कर रहे हैं अभी? C डैश और C5 को सॉल्व करेंगे। बोला हमने कि पैरेलल में है। मेंशन करेंगे C डैश एंड C5 आर इन पैरेलल बिटवीन D एंड F। ले पड़ी बात। अब इनका इक्विवेलेंट कुछ तो निकलेगा। इक्विवेलेंट के लिए फिर से एक सिंबल यूज करें, से C डबल डैश यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया था कि सिंपल अलजेब्रिक सम होता है। सो C डबल डैश इज रिटन एज से C डैश प्लस से C5। गॉट इट? ये बात समझ आ गई? वैल्यू सॉल्व कर दें। सो C डबल डैश इज रिटन एज C डैश निकाला था C/2, C5 निकाला है C। सो C डबल डैश कितना हो गया? 3C/2। गॉट इट? ओके, फिर से वैसे ही करते हैं। जितने पार्ट को सॉल्व कर लिया, एक नया फिगर बनाएंगे, पेरेंट फिगर में से उस पार्ट को हटा देंगे, ठीक है, और उस वाले पार्ट की जगह उसका इक्विवेलेंट मार्क करेंगे। तो हमने सॉल्व किया है C डैश और C5 को, दोनों को हटाते हैं, दोनों को हटा दिया पेरेंट फिगर से। अब ये फिगर हो जाएगा थर्ड, अब ये फिगर हो जाएगा थर्ड। ओके, अब ध्यान से देखिए, C डैश और C5 D और F के बीच में कनेक्टेड थे, तो इनका जो इक्विवेलेंट आ गया, एक फिर से कैपेसिटर मार्क करें, ठीक है, और जो कैपेसिटर्स यहां पे आपने सिंबल यूज किया उसको वहां पे डाल दें, तो ये हो जाएगा C डबल डैश। क्लियर? दो स्टेप समझ आ गए। अब तीसरे स्टेप पे दोबारा वही काम करेंगे जैसे पहले स्टेप में किया था। फिर से पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करते हैं, डी पॉइंट पे पहुंचते हैं, और डी पे फिर ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि दो से ज्यादा कंडक्टर्स कनेक्टेड है। तो इसका मतलब अभी C1 को फिर से सॉल्व नहीं कर सकते, तो भूल जाए C1 को, ठीक है। ब्रांच टू ब्रांच मूव करना था। चलिए अब हम इस वाले पाथ से जाते हैं, तो डी से पहले एफ आ गए। अब पॉइंट एफ पे ब्रांचिंग तो नहीं है,
क्योंकि सिर्फ 2 ही कंडक्टर्स है। तो जब आप F पहुंचेंगे, F से आप आगे जाएंगे तो C4 को क्रॉस करेंगे, आप G पे पहुंच जाएंगे। तो ब्रांच से ब्रांच तक मूव कर गए और 2 कैपेसिटर क्रॉस हो गए। क्लियर? बात समझ आ गई? तो कैसे जा रहे हैं? D से पहले F जा रहे हैं और F से फिर आप G जा रहे हैं। समझ आ गई ये बात? चलिए, तो अब क्या बोलेंगे कि भैया C" और C4 दोनों सीरीज में कनेक्टेड है बिटवीन द पॉइंट्स D एंड G। क्यों? क्योंकि बीच में कोई ब्रांच ही नहीं आई। सीरीज की यही पहचान बताई थी, जब ब्रांचिंग ना हो तो सीरीज होता है। Now, C" and say C4 are in series with each other between D and G. ओके, सॉल्व कर रहे हैं। सिंबल C" डाल देते हैं। सो इट विल बी 1/C C" प्लस 1/C C4। समझ आ गई बात? वैल्यूज डाल देते हैं। C" का वैल्यू था 3C/2, तो उसको लिखेंगे 2/3C। C4 ये है C के इक्वल, तो एलसीएम आ गया जी आपका 3C। यहां पे हो गया 2 प्लस ये हो गया जी आपका 3, तो टोटल हो गया जी आपका 5/3C। ये था 1/C ट्रिपल डैश। तो C ट्रिपल डैश कितना आ गया? तो C ट्रिपल डैश निकल करके आ गया 3C/5। समझ आ गई बात? ओके, सॉरी, इसको स्टेप थर्ड कर ले, इसको स्टेप थर्ड कर ले, स्टेप थर्ड और फिगर थर्ड। ठीक है, पहले बड़ी बात। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व कर दिया, पेरेंट फिगर से फिर हटाएंगे, एक नया फिगर दोबारा बनेगा। ध्यान से देखिए, जितने को सॉल्व कर दिया हटा दे, उसको मेन फिगर से हटा लिया। अब बेटा C" और C4 का जो इक्विवेलेंट है वो है C ट्रिपल डैश। कहां पर कनेक्ट करेंगे? क्योंकि बेटा ये जो कॉम्बिनेशन है D और G के बीच में कनेक्टेड थी, ये G लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंस उसको हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर डालें और उसको G के साथ कनेक्ट करा लें। ये कैपेसिटर है C ट्रिपल डैश। अब दोबारा मूव करिए, अब की बारी ये फिगर 4 हो गया और ये स्टेप 4 हो गया। समझ आ गई ये बात? फिर से दोबारा से मूव करिए, पॉइंट A से मूव करिए, B तक पहुंचना था। A से मूव करते हैं D पे जाके फिर खड़े हो गए, फिर ब्रांचिंग दिखाई दे रही है D पे, क्योंकि 3 कंडक्टर्स है। तो मतलब अभी C1 को फिर से बचे हुए सर्किट के साथ सॉल्व नहीं किया जाता, भूल जाए C1 को। अब D से आगे जाएं, ब्रांच टू ब्रांच जाना था। अब D से जाते हैं, एक ये वाला पाथ हो गया वाया C ट्रिपल डैश और एक ये वाला पाथ हो गया वाया C डैश। ब्रांच टू ब्रांच पहुंच गए। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है C ट्रिपल डैश कहां पे है, कहां पर कनेक्टेड है? D और G के बीच में। C6 कहां पे कनेक्टेड है? D और G के बीच में। तो भैया ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, तो बता दें C ट्रिपल डैश एंड C6 are in parallel between D and G। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लें। सिंबल लिख रहा हूं मैं से CA, so CA is written as C ट्रिपल डैश प्लस C6। गॉट इट? वैल्यूज डाल दें। C ट्रिपल डैश 3C/5 था, C6 C था, तो टोटल हो गया 8C/5। ये बात समझ आ गई? ओके, यहां पे भी काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट फिगर बनेगी। नेक्स्ट फिगर बनती है जी फिगर 5th और स्टेप हो जाएगा फिगर 5th, सॉरी स्टेप 5th। ओके, जिनको सॉल्व कर लिया उन्हें पेरेंट फिगर से दोबारा हटा दें। ओके, इक्विवेलेंट को ड्रॉ कर लें। जो इक्विवेलेंट है
दैट इज टू बी कनेक्टेड बिटवीन डी एंड जी, इक्विवेलेंट था सी ए। ओके, दोबारा मूव करिए, दोबारा मूव करिए, ए से मूव करिए, पहुंच गए डी पे। अब डी पे ब्रांचिंग तो नहीं है, सिर्फ 2 कंडक्टर्स है। डी से आगे जाइए, जी पे पहुंच गए, यहां पे भी ब्रांचिंग नहीं है। आगे गए, बी पे भी पहुंच गए, बीच में ब्रांचिंग तो नहीं आई, और पॉइंट ए से लेके बी तक भी पहुंच गए। कितने कैपेसिटर्स क्रॉस किए? 3 क्रॉस किए, क्योंकि बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है तो तीनों के तीनों सीरीज में हो गए। पल्ले पड़ गई बात। ओके, इसको कहते हैं स्टेप वाइज रिड्यूस करना। ओके, नाउ we can say C1, CA and C7 are in series between A and B. Got it? So 1 upon C. चलिए एक काम करते हैं, इसको CA भी लिख देते हैं, ठीक है? It is equals to 1 upon say C1 plus 1 upon say CA plus 1 upon say C7. वैल्यूज डाल देते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 upon C1, C1 का वैल्यू C था, प्लस ये निकला था 8C/5, ये निकला था 8C/5, तो ये हो गया 5/8C, प्लस ये हो गया 1/C, तो एलसीएम हो गया भैया आपका 8C। तो टोटल कितना हो गया? 8 + 5 + 8। गॉट इट? गॉट इट? सॉल्व कर ले तो ये आ गया जी आपका 1 upon CA भी, तो ये हो गया 8 8 16, 16 and 5 21। So CAB is 8C/20। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। जिस तरीके से सिखाया है, आज अपनी बुक्स खोलना, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स निकालना, क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा हो 2 पॉइंट्स ए और बी ले लेना, सर्किट जैसा भी हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। आज प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बेटा स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खुलने वाले हैं। अब ये रिजल्ट की अनाउंसमेंट देख रहे हैं, गवर्नमेंट फटाफट कर रही है, और स्कूल खुलेंगे तो स्कूल वाले तो कोर्स को भगाएंगे, ठीक है? ओके, और ये याद रखें जिनके दिमाग में हो ना कि कोर्स डिलीट हुआ है, बेटा कोर्स सिर्फ वो वाला डिलीट हुआ है जो इररेलेवेंट पार्ट हुआ करता था। जो मेन पार्ट है वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुआ, उससे कोई डिलीट नहीं हुआ है। तो हार्डली वी कैन से कि 2-3% अगर क्वालिटी वाइज बात की जाए, क्वालिटी वाइज, तो 2-3% ही डिलीट हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। समझ आ गई बात? ओके, चलिए प्रैक्टिस कर लें इनको। आज सिर्फ इतना करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास।